Yeah. Let us go ahead. Thank you. Good evening and welcome all to the IHP CME of February this year. And today we have with us Dr. Shweta Singh, MD Homeopathy and a PhD scholar. She is President DHMA and she is the first female president of DHMA, and she's the Chief Administrator of KHA Homeo Study Group USA. She's a Senior Research Fellow in Central Council for Research in Homeopathy, headquarters in New Delhi. And she's a senior consultant with Orbit Clinics. She brings with her a rich experience of more than 11 years now and expertise in treating Second, many difficult cases. Graduated in BHMS from Baxter and Homeopathic Medical College and Hospital, Delhi NCR, and completed her MD in homeopathy from Sri Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College and Hospital, Ludhiana. He has also completed a postgraduate diploma in health promotion from National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi. And she's currently pursuing PhD in homeopathy. She's also an associate editor of Homeopathic Heritage by B. Jain. Also worked as a medical officer at Muskan Foundation in the field of drug de-addiction. She is recipient of many awards, including the Legendary Homeopathy Award from Ministry of Health of Uttarakhand, DHA Hahnemann Award, to name a few. Today, she is with us to enlighten us on decoding alcohol addiction and exploring the homeopathic approach to recovery. So, well, I welcome Dr. Shweta Singh on the board and please enlighten us and start this. So, I'll make you the host, Dr. Shweta. डॉक्टर मृणालिनी पहले सबको म्यूट कर दो, बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है। Okay, ma'am. अगर तुमको ऐसे आ जाइएगा कोई दवा भी दे देंगे। Now I'll make Dr. Shweta the host. Okay, ma'am. Right. Please start. Yeah. Thank you so much, ma'am, for this introduction and for inviting me to IHP platform. I am really thankful to Dr. Sangeeta Anand, Dr. V.K. Chauhan sir, and Dr. Geeta Mogyan, to all of you, the team members of IHP Delhi State Branch. And let me share my screen. I hope it's visible to all. So nowadays, okay, thank you, ma'am. So nowadays, we all know that the psychoactive substance use is so common in the society, and we are struggling with these kinds of psychoactive substances, in which alcohol is the most common abused drug, and after that, cannabis and opioids follow this alcohol drug use. So we will see how to decode this alcohol addiction and explore the homeopathic approach to recovery in such cases. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि साइकोएक्टिव सब्सटेंस या ये ड्रग होते क्या है, बेसिकली ये किस तरह से एक्ट करते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है, एंड आफ्टर दैट इसका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पर। सो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, जिसको बहुत सारे टर्म्स हम यूज करते हैं, लाइक ड्रग, वी यूज नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक। सो बेसिकली नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक हम यूज करते हैं जब कोई ड्रग लीगल होती है, एंड एडिक्टिव ड्रग्स जो कि एडिक्शन को डेवलप कर देती है, उनको हम एडिक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। देन देयर इज अ टर्म रिक्रिएशनल ड्रग, बेसिकली जो कि रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज होती है, जैसे कि इंटॉक्सिकेशंस के लिए, जैसे कि स्लीपिंग पिल्स हम यूज करते हैं या फिर पेन किलर्स हम यूज करते हैं। देन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं जो कि मेडिकल, जिनकी मेडिकल इंडिकेशंस भी होती है, बट जो करेक्ट टर्म हम यूज करते हैं वो होती है साइकोएक्टिव सब्सटेंस। मीनिंग अ ड्रग बेसिकली एक केमिकल है जो कि क्या करता है कि पेशेंट ने या इंडिविजुअल ने लिया एंड इट अफेक्ट्स द ब्रेन,
बेसिकली जो ये साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हम यूज करते हैं वो एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर है, इट्स अ डिजीज। देन इफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, दे ऑल्टर द ब्रेन फंक्शंस, दे विल ऑल्टर द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल, उनकी परसेप्शन को इम्पेयर करेंगे, उनके मूड को इम्पेयर करेंगे। देन जो उनका थिंकिंग प्रोसेस होता है, उनके थॉट्स को अफेक्ट करेंगे, उनकी जो लॉजिकल थॉट्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, या उन थॉट्स से लिंक्ड जो अलग नेक्स्ट जो थॉट्स होंगे, उन सब चीजों को इम्पेयर कर देंगे। सो बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट उनके बिहेवियर को, उनकी मोटर फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स। देन द इम्पैक्ट, वी ऑल नो कि इंडिविजुअल पर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, बट उसके साथ फैमिली लेवल पर या सोसाइटी पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये जो ड्रग डिसऑर्डर्स हैं लेकर आते हैं। जब हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं या एडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो व्हाई ड्रग्स, दीज ड्रग्स कॉज एडिक्शन, कैसे, क्यों? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी एंड प्रोपेंसिटी टू कॉज एडिक्शन, because they have the neurobiological effects on the human brain. बेसिकली जो रिवॉर्ड पाथवेज हमारे ब्रेन के होते हैं उनको अफेक्ट करती है, एंड ये जो ड्रग्स हैं आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं हमारी जो रिवॉर्ड पाथवे जो फंक्शनिंग है ब्रेन की उसको। तो उससे क्या होता है कि एक प्लेजर मिलता है, जैसे कि हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक हार्ड वर्क करते हैं, हम एफर्ट्स डालते हैं, लाइक हमें अच्छे मार्क्स स्कूल में लाने हैं, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम हार्ड वर्क करेंगे। देन वहां से जब हमें रिजल्ट मिलता है तो वो एक रिवार्ड पाथवे फॉलो करता है, जिससे जब अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है, दैट री होती है, राइट, ताकि हम वो चीजें बार बार करें। हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमारा मन करता है हम और हार्ड वर्क करें, हम और अच्छे नंबर लाएं। हम किसी कंपटीशन में होते हैं तो हम उसमें जितना अपना बेस्ट देना चाहें उतना बेस्ट देते हैं, ताकि हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें, और वो हमारी एक आदत बन जाती है कि वो एक अच्छे जो रिजल्ट्स होते हैं उनको पाने की। बट यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम ड्रग्स ले रहे हैं तो यहाँ हमें कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, राइट। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो जो ड्रग है जब हम उसको लेते हैं तो वो अपनी जो रिवॉर्ड पाथवे है उसको स्टिमुलेट कर देता है और हमें एक प्लेजर देता है। These drugs extract that pleasure without efforts. So सबसे बड़ी बात है कि हमें अच्छा फील हो रहा है और हमें उसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ हम एक ड्रग ले लेते हैं और हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है। So that gives an reinforcement, और ये एक ड्रग टेकिंग बिहेवियर को मोटिवेट कर देता है। सो दिस इज द रीजन कि एक एडिक्शन बन जाती है कि हमें अच्छा फील हो रहा है, हमने एक बार ड्रग लिया, हमें फिर से अच्छा फील करना है, हमने दूसरी बार ड्रग लिया, और जब ये रिपीटेडली हम करते हैं तो दैट इज एडिक्शन। देन व्हाई पीपल टेक ड्रग्स, क्यों लेना? द मेन रीजन इज टू फील गुड, हमें अच्छा लगता है टू ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस, या फिर हम किसी भी चीज से गुजर रहे हैं, लाइक वी वांट टू फील बेटर इन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, सिचुएशंस, लाइक हमें नींद नहीं आ रही तो हमने ड्रग ले लिया, स्लीपिंग पिल्स ले ली, हमें अच्छा लगा, नेक्स्ट डे हमने फिर ले लिया। हमें किसी तरह की एंजाइटी है तो हमने एक ड्रग ले लिया, कैनबिस ले लिया या अल्कोहल ले लिया, हमें अच्छा फील हुआ तो हमने वो एंजाइटी को दूर करने के लिए, वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, वो जो डिप्रेशन हमें फील हो रहा है उसको दूर करने के लिए हमने ड्रग ले लिया। सो नई चीजों को ट्राई करने के लिए भी ले सकते हैं, और कोई चीज जिस चीज से हम गुजर रहे हैं उस चीज को भुलाने के लिए भी हम ले सकते हैं, राइट। तो वहां पे क्या है, एक अच्छी एक प्लेजरेबल फीलिंग है जिसको हम पाने के लिए बेसिकली ड्रग का यूज कर लेते हैं। जहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वहां पे भी ड्रग लोग लेना शुरू कर देते हैं ताकि हम परफॉर्म अच्छा कर पाए। कॉमन जो फैक्टर्स हैं बेसिकली पीयर प्रेशर में आकर बहुत ज्यादा
जो हमारी जनरेशन है, स्पेशली यंग जनरेशन 15 to 25 ईयर्स की जो जनरेशन है, दे आर मोर प्रोन टू एक्सपेरिमेंट दीज टाइप ऑफ दीज काइंड्स ऑफ ड्रग्स. देन टू फिट इनटू अ सोशल सर्कल, कि हमें अकेला ना रहना पड़े. आजकल पीयर ग्रुप है कि ऐसा ना हो कि हम ये चीज को मना कर दें तो हमसे लोग बात ही ना करना पसंद करें या हम अलग हो जाएं. तो वो चीजों को दूर करने के लिए देन कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जो कि ज्यादा प्रोन होते हैं, लाइक लोगों की पुअर कोपिंग स्किल्स हैं या दे हैव लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस. तो उन लोगों में भी इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या यूसेज है ड्रग्स की, वो ज्यादा देखी गई है. ऐसी जगहों पे जो कि ड्रग्स इजीली अवेलेबल हैं, तो वो भी बहुत जल्दी से अवेलेबिलिटी है तो लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे. देन अफोर्ड कर सकते हैं, अगर इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी यूसेज में आ जाता है. देन कहीं कहीं जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को ज्यादा प्रमोट कर देता है. लाइक बच्चे हैं, उनका कन्फ्लिक्ट कोई चल रहा है या सिंगल पेरेंट है या पेरेंटल जो सुपरविजन है वो बहुत इनएडिक्वेट है, तो उन केसेस में भी ये जो जनरेशन है वो ज्यादा इन चीजों में पड़ जाती है. या फिर हमारे घर का ही जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो देखकर हमें भी मन करता है कि हाँ हम भी ट्राई करें. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से लोग इन चीजों में ज्यादा आ जाते हैं. देन देयर आर वेरियस स्टेजेस. लाइक सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि हमने नई चीज ट्राई करना चाहा और हमने इनिशिएशन के लिए एक बार कोई ड्रग ले ली. वो कुछ भी हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, कैनबिस हो सकता है, गांजा, ओपियोइड, कुछ भी हो सकता है. लेकिन फिर क्या किया, हमें अच्छा लगा. देन हमने सेकेंड स्टेज क्या आई कि हमने उसको ओकेजनली लेना शुरू किया, इरेगुलर. हमने जब मन किया हमने ले लिया, कभी पार्टी में गए हमने ले लिया. देन थर्ड स्टेज कि हमने उसको रेगुलरली लेना शुरू किया, लाइक वीकेंड्स पे लेना शुरू कर दिया. हर वीकेंड में हाँ ठीक है पार्टी है, हमने लेना शुरू कर दिया, तो वो एक रेगुलर पैटर्न में आ गया. देन हमने उसको फोर्थ स्टेज डेली लेना शुरू कर दिया. नाउ फिफ्थ स्टेज कि अब हम उसके डिपेंडेंट हो गए, अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. सो दैट इज बेसिकली द डिपेंडेंस, राइट. बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग इन 5 स्टेजेस से होकर गुजरे. हो सकता है किसी ने इनिशिएट किया, फर्स्ट टाइम लिया और उसके बाद उनका मन नहीं किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने स्टॉप कर दिया, तो वो वहीं खत्म हो गया. ऐसा जरूरी नहीं कि ओकेजनल लेने वाले हर को ही कोई डिपेंडेंस में आ जाए. सो ये स्टेजेस ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल हर एक स्टेज से गुजरे और एक दिन डिपेंडेंट बन जाए. नाउ आवर टॉपिक इज अल्कोहल. सो हमारा ये एक सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया, इसमें पाया गया कि 14.6% 10 to 75 ईयर्स के जो लोग हैं उसमें 14.6% ऑफ द पॉपुलेशन बेसिकली अल्कोहल यूज कर रही है. यूज इज नॉट अ डायग्नोस्टिक एंटिटी. यहाँ पे यूज बेसिकली हम ओकेजनल यूज को बोल सकते हैं कि हाँ पार्टी में गए और हमने कोई अल्कोहल यूज कर ली एंड उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इतने नहीं होते. तो इट्स इरेगुलर, ओकेजनली हम गए, हमने एक ड्रिंक ले ली, दैट्स इट. सो दिस इज द यूज. 14.6%, 16 करोड़ लोग हमारी इंडिया में बेसिकली अल्कोहल यूज करते हैं, ऐसा इस सर्वे में पाया गया. देन द सेकेंड स्टेज इज हार्मफुल यूज. बेसिकली हार्मफुल यूज क्या है, जहां पर किसी भी तरह के फिजिकल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आने लगे, लेकिन उसके बाद भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद भी हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, राइट. तो 5.2% पॉपुलेशन हार्मफुल यूज की कैटेगरी में है. इट इज बेसिकली द पर्सन इज इन अ पैटर्न ऑफ अल्कोहल यूज which results in physical and psychological harm. लेकिन डिस्पाइट कि उसकी हेल्थ को डैमेज हो रहा है फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी, लेकिन पेशेंट जो इंडिविजुअल है वो अल्कोहल लेना छोड़ नहीं रहा.
दैट इज हार्मफुल। उसको पता है कि अल्कोहल से मुझे ये हार्म होने शुरू हो गए हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट वो अल्कोहल ले रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, बट इट इज नॉन डिपेंडेंट। अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उसकी कंडीशन अभी इस स्टेज में रिवर्सिबल है, रिहैबिलिटेशन हो सकता है, पॉसिबल है। देन द थर्ड स्टेज इज एब्यूज, और जिसको हम डिपेंडेंस बोलते हैं। सो 2.7% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एब्यूज डिपेंडेंस की कैटेगरी में है। बेसिकली देयर इज क्लस्टर ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल सिम्टम्स, लेकिन वो तो है ही, फिजिकल भी है, इफेक्ट हो रहा है पेशेंट, साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट हो रहा है, बट उसके साथ साथ पेशेंट को हार्म और भी स्फेयर्स में हो रहा है, जैसे कि उसकी जॉब चली गई, ऑक्यूपेशनल हार्म हो गया, देयर इज सोशल हार्म हो गया, लीगल हार्म हो गया। तो बेसिकली उसके जो अराउंड में जितने भी स्फेयर्स हैं वहां पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होनी शुरू हो गई, दैट इज known as abuse or dependence. DSM फोर्थ क्राइटेरिया इसको अल्कोहल डिपेंडेंस बोला करते थे हम, बट इन फिफ्थ DSM 5 में इट इज नोन एज अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। बेसिकली इट इज अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन इलनेस, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कि हमें लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है, तो इसी तरह ये जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है वो भी इसी तरह की बीमारी है, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दे थिंक इट इज अ बिहेवियरल इलनेस, बट इट इज अ ब्रेन इलनेस। देन टाइप ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस। अल्कोहल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज इथेनॉल। तो इथेनॉल की जो परसेंटेज होती है दैट डिसाइड कि कितना जो अल्कोहल बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज है वो कितना होगा, और हर एक ड्रिंक का अलग अलग होता है। जैसे कि बियर अगर हम देखें तो 3 to 5% इथेनॉल प्रेजेंट होता है उसमें। स्ट्रॉन्ग बियर ले ले तो 8 to 11%। देन कम्स वाइन्स जिसमें 5 to 13% इथेनॉल प्रेजेंट होता है। देन फोर्टिफाइड वाइन्स 14 to 20% इथेनॉल प्रेजेंट होता है। देन स्पिरिट्स जिसमें विस्की, रम, जिन, वोडका, ब्रांडी ये सब आते हैं, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज इथेनॉल की होती है वो इन्हीं में होती है, दैट इज 38 to 43%। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी डिसाइड करती है कि पेशेंट या इंडिविजुअल कितनी जल्दी एडिक्ट बनने के स्फेयर में है। Then the definition, alcohol use disorder is defined as the pathological and problematic pattern of alcohol use and behaviors leading to clinically significant impairment or distress occurring within 12 months of use, as manifested by at least 2 of the 11 criteria classified under 4 domains, which is mentioned in DSM-5, where there is impaired कंट्रोल लूज होता है, सोशल इम्पेयरमेंट आती है, देयर इज रिस्की यूज, एंड देयर इज फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया विच वी विल डिस्कस लेटर। सो बेसिकली अल्कोहल यूज डिसऑर्डर या अल्कोहल डिपेंडेंस क्या होती है कि एक क्लस्टर हमें मिलेगा, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जिसमें लेकिन द यूज शुड बी प्रोलॉन्ग्ड एंड देयर शुड बी रिपीटेड यूज, तब हम उसको कहेंगे कि द पेशेंट इज इन द कैटेगरी ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। नाउ देयर आर, जैसे कि मैंने बोला 4 डोमेन्स हैं, और उनके अंदर कोर फीचर्स बेसिकली देयर आर 11 क्राइटेरियाज, जिसमें से हमने सिर्फ ये 6 लिए हैं जो कि आइडेंटिफाइंग करेंगे दैट द पेशेंट इज एडिक्ट। द फर्स्ट वन इज craving. Craving क्या होती है? Basically there is the patient usually experience a strong desire for alcohol. There is persistent desire and there is unsuccessful efforts to cut down or control alcohol use.
तो पेशेंट चाहते हुए भी, क्रेविंग इतनी स्ट्रांग होगी कि चाहते हुए भी ना तो वो जो अल्कोहल यूज है उसको कट डाउन नहीं कर पाएगा। देन प्रायोरिटाइजिंग यूज ऑफ अल्कोहल, बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट का जाएगा वो जाएगा इन द एक्टिविटीज टू ऑब्टेन अल्कोहल। उसके घर में किसी की शादी हो, कोई बहुत बड़ा कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, कोई भी सोशल इंटरपर्सनल कुछ भी चले, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि मैं अल्कोहल या कोई भी ड्रग लेने कैसे जाऊं और कब जाऊं। He will just fail to fulfill all the major role obligations at school, at college, at home or at workplace. So उसको ऑफिस नहीं जाना, उसको सिर्फ दिमाग में ये रहेगा कि मैं अल्कोहल या कोई भी ड्रग कैसे पा सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ। उसके पास पैसे नहीं है तो वो चोरी करेगा, लेकिन उसको उसका एक ही एम रह जाता है कि मुझे अल्कोहल चाहिए। सो सारी चीजों में से ही विल प्रायोरिटाइज कि द ड्रग अल्कोहल। देन टॉलरेंस, बेसिकली लेना शुरू करते हैं थोड़े से अमाउंट से, उसके बाद क्या हो जाता है, देयर इज नीड फॉर इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्कोहल। डॉक्टर श्वेता, आप थोड़ा सा एडमिट वेटिंग रूम में थोड़ा सा चेक कर लीजिए, थोड़ा एडमिट कर लीजिए। थैंक यू। So basically there is a need to increase the amount of alcohol. आपने शुरू एक पैग से किया, लेकिन after sometimes after months of regular use, तो अब क्या हुआ, आपको एक ड्रिंक से कोई इफेक्ट नहीं आता, तो you need that intoxication effects और द डिजायर्ड इफेक्ट्स जो भी आपको चाहिए, जो आपको प्लेजर फील होता है अल्कोहल लेने के बाद, आपको एक ड्रिंक से नहीं आ रहा, तो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक वन मोर शॉट। So this is tolerance. Then there comes withdrawals, which is the most important part, जहां पे होम्योपैथी हमें हेल्प कर सकती है। So basically क्या होता है कि अल्कोहल लिया, आपको प्लेजरेबल इफेक्ट्स आए, लेकिन अब रेगुलर यूज में आप आ गए हैं, आप डिपेंडेंट हैं, अगर आप अल्कोहल नहीं लेते तो देयर विल बी सम सिम्टम्स, जो आपकी बॉडी में वो जो क्रेविंग है या वो सिम्टम्स हैं वो आने लगेंगे, जिसकी हम आगे बात करेंगे, जिनको हम विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। वो क्या सिम्टम्स होते हैं वी विल डिस्कस लेटर। सो इस तरह के अनप्लेजरेबल सिम्टम्स आने शुरू होंगे बॉडी में, मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, जो कि आपको मजबूर कर देंगे कि आप अल्कोहल दोबारा लें, राइट। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं विल डिस्कस। उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल, आप चाह रहे हैं लेकिन उसके बाद भी द पर्सन बेसिकली लूजेस सेल्फ कंट्रोल ओवर अल्कोहल यूज, और आपको पता है कि आपको बहुत हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पूरी फैमिली बिखर गई है, राइट, लेकिन आप उसके बाद भी अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहे, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल नाउ, अब आप नहीं कर पा रहे। नाउ द वेज ऑफ कंजप्शन, जैसे कि मैंने बोला कि अगर पैसे नहीं हैं तो पैसों को चोरी करके लेकर आएंगे, अगर उनको आपको थ्रेटन भी करना पड़ा कि मुझे ये यूज करने दो ड्रग, तो वो चीजें भी अपनाने के लिए रेडी रहते हैं। तो वेज ऑफ कंजप्शन जो है वो तरीके ढूंढते हैं कि मैं कैसे जाऊं, झूठ बोलकर जाना है दे विल गो, लड़ाई करके जाना है दे विल गो, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। सो दीज आर द कोर 6 फीचर्स, जिसमें से अगर हमें 3 भी मिल रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट द पेशेंट इज एडिक्ट। सो दीज आर द मेन क्राइटेरिया।
अब हम लीगल इंटॉक्सिकेशन की बात करें तो 1 peg is 30 ml and 30 mg per dl, 80 to 100 mg per dl is the legal intoxication. 80 to 100 पर आकर जो हम टेस्ट कराते हैं ना, तो बेसिकली वो इसी के लिए होता है कि उसमें BAC ब्लड अल्कोहल जो कंटेंट है वो देखा जा कंसंट्रेशन देखा जाता है, और अगर वो 80 to 100 मिले सो दैट मीन्स यू आर इंटॉक्सिकेटेड, जो कि लीगल मानी जाती है. देन साइकोलॉजिकल एक्यूट इफेक्ट्स अगर हम बात करें, सो बेसिकली जब हम अल्कोहल लेते हैं तो क्या मेंटल और बिहेवियरल इफेक्ट्स आते हैं. सो अगर 80 तक जो हमारी ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन जाता है, सो इट विल प्रोड्यूस यूफोरिया, एक प्लेजरेबल फीलिंग है, ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस बेसिकली प्रोड्यूस होगी. देयर इज अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, द पेशेंट विल टॉक फ्रीली and it will reduce the alertness and there will be clumsy movements of hands and legs. जो कि आपने अगर कभी एक ड्रिंक लिया है, 2 ड्रिंक लिया है, तो आपने फील किए होंगे कि इस तरह से इफेक्ट हमें आने शुरू होते हैं. हमें अच्छा लगता है, हम फ्रीली बात करते हैं बिना सोचे समझे, थोड़ा सा हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, बट जो अलर्टनेस है वो रिड्यूस हो जाती है. अल्कोहल हमें लगता है कि एक पेशेंट बेसिकली अल्कोहल लेने के बाद एग्रेसिव हो जाता है, बट अल्कोहल इज अ CNS डिप्रेसेंट एंड इट इज अ सेडेटिव, इट हैज अ सेडेटिव इफेक्ट. बेसिकली ड्राउजीनेस आपको फील होगी. सो 80 to 100 तक जब BAC जाता है तो देयर विल बी नॉइजी, पेशेंट हो जाएगा, मूडी हो जाएगा, जजमेंट जो है वो इम्पेयर होगी यहाँ पे. और 80 to 100 लीगल इंटॉक्सिकेशन की हमने बात की, तो बेसिकली क्यों रोड साइड एक्सीडेंट्स में ये जो लेवल है वो बहुत एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ पे जो पेशेंट इंडिविजुअल है उसकी ड्राइविंग एबिलिटी भी इम्पेयर हो जाती है. सो दैट इज वाई वो रोड एक्सीडेंट होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो लेवल 80 to 100 जा रहा है. देन 100 से 200 जा रहा है अगर लेवल, तो जो EEG चेंजेस हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं. दे विल बी ब्लड विजन होने लग जाता है, दे विल बी अनस्टेडी गेट, मोटर इनकोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, द पेशेंट हैव अ स्लरी स्पीच, एग्रेसिव हो जाएगा पेशेंट, छोटी सी बात पे ही कैन बी क्वेरलसम, ही विल टॉक लाउडली. सो अगर 3 से ज्यादा पेग ले लिए तो ये जो इफेक्ट्स हैं इस तरह के इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. देन इफ द BAC रीच टू 200 to 300, देयर इज अ स्टेट दैट इज नोन एज एमनीसिया, जिसको हम ब्लैकआउट स्टेट बोलते हैं. ब्लैकआउट स्टेट बेसिकली क्या होगा कि जो भी अभी किसी पार्टी में गए, आपने 3-4-5 पैग ले लिए और उसके बाद ये जो एमनीसिया स्टेट आई, ब्लैकआउट हो गया पेशेंट, तो रात को जो भी हुआ वो उसको याद नहीं रहेगा. वो कहाँ गया, वो ड्राइव करके घर कैसे पहुंचा, वो जो सारे इवेंट्स है ना, वो पेशेंट को याद नहीं रहते. उसको बिल्कुल कुछ नहीं याद रहेगा, उसको सिर्फ ये याद रहेगा हाँ मैंने पैग लिए थे जब तक वो होश में थे, एंड आफ्टर दैट मैंने किससे बात की, मैं किससे मिला, कौन मुझे घर छोड़ के आया, या मैंने खुद से ड्राइविंग कैसे की, वो जो सारे इवेंट्स हैं वो कुछ भी याद नहीं रहते. दैट इज अ स्टेट ऑफ ब्लैकआउट विच इज वेरी डेंजरस. देन 6 पैग से अगर 6 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज्यादा पेशेंट ले लेता है तो BAC लेवल could reach to 300 to 350 which can lead to coma. और इससे ज्यादा अगर इंडिविजुअल लेता है, लाइक अगर BAC 600 तक पहुंच गई, तो इट कैन